بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے صف باندھنے والوں کی، پھر ڈانٹنے ڈپٹنے والوں کی، پھر ذکر پڑھنے والوں کی۔ بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے، آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا مالک اور پوربوں کا مالک۔ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور ان کو بنایا ہر شیطان سرکش سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ وہ شیطان اونچائی کی باتیں نہیں سن سکتے اور ہر طرف سے مارے جاتے ہیں، دھکیلے جاتے ہیں، اور ان کے لیے لگاتار عذاب ہے۔ مگر جو کوئی کچھ چھین لے تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک شعلہ چمکتا ہوا۔ اب اے نبی ان سے پوچھو، کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا وہ اور چیزیں جو ہم نے پیدا کی؟ ہم نے ان کو چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا، بلکہ تم تو حیرت میں پڑتے ہو اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو صاف جادو ہے۔ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی زندہ ہوں گے؟ کہہ دو کہ ہاں، اور تم نیچا کیے جاؤ گے، بس وہ تو ایک ہی ڈانٹ ہوگی۔ پھر کیا دیکھو گے اور کہیں گے ہائے ہماری بدقسمتی، یہی بدلے کا دن ہے۔ فرشتے کہیں گے یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ فرشتوں سے کہا جائے گا جمع کرو سب ظالموں کو اور ان کے جوڑی داروں کو اور جنہیں وہ پوجتے تھے اللہ کے سوا، پھر ان کو دوزخ کی راہ دکھاؤ اور ان کو روک لو، بے شک یہ پوچھے جانے والے ہیں۔ کیوں تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ بلکہ آج وہ سب سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کی طرف رک کر کے پوچھیں گے، کہیں گے بے شک تم ہمارے پاس دائیں سے آتے تھے۔ وہ کہیں گے بلکہ تم تو ایمان والے نہیں تھے اور ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا، بلکہ تم ہی سرکش لوگ تھے۔ تو ہم پر ہمارے رب کا فیصلہ ثابت ہو گیا، ہم تو اب عذاب چکھنے والے ہیں۔ تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم بھی گمراہ تھے، تو بے شک وہ اس دن عذاب میں ساجھیدار ہوں گے۔ بے شک ہم گنہگاروں سے ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ اکڑتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم اپنے شاعروں کے دیوتاؤں کو چھوڑ دیں؟ بلکہ وہ حق لے کر آیا ہے اور رسولوں کی تصدیق کرتا ہے۔ بے شک تم دردناک عذاب چھکنے والے ہو، اور تمہیں بدلہ صرف اسی چیز کا ملے گا جو تم کرتے تھے، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے ایسا نہیں ہوں گے۔ انہی کے لیے معلوم رزق ہے، پھل ہوں گے، اور وہ عزت والے باغوں میں ہوں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے پاس صاف بہتا ہوا جام پیش کیا جائے گا، سفید، پینے والوں کے لیے لذت والا۔ اس میں نہ سر درد ہوگا اور نہ وہ اس سے مدہوش ہوں گے، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی حوریں ہوں گی جیسے وہ انڈا چھپایا ہوا ہو۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رک کر کے پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا بے شک میرا ایک ساتھی تھا، کہتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم بدلہ پانے والے ہیں؟ وہ کہے گا کیا تم دیکھتے ہو؟ پھر اس نے جھانک کر دیکھا تو اس کو دوزخ کے بیچ میں دیکھا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم تو مجھے ہلاک کر دیتا، اور اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی حاضر کیے جانے والوں میں ہوتا۔ تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں؟ مگر ہماری پہلی موت، اور ہم کو کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ بے شک یہی بڑی کامیابی ہے، اس کے جیسا کام کرنے والوں کو چاہیے کہ کام کریں۔ کیا یہ مہمانی بہتر ہے یا جھکم کا درخت؟ ہم نے اس کو ظالموں کے لیے آزمائش بنایا۔ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کے بیچ میں اگتا ہے، اس کا پھل ایسا ہے جیسے شیطانوں کے سر۔ بے شک وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس کے اوپر ان کو کھولتے پانی کا گھونٹ ملے گا، پھر ان کی واپسی ضرور دوزخ کی طرف ہوگی۔ بے شک وہ اپنے باپ دادا کو گمراہ پاتے تھے تو وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑتے رہے، اور ان سے پہلے زیادہ تر لوگ گمراہ ہو چکے تھے، اور ہم نے ان کے درمیان ڈرانے والے رسول بھیجے۔
तो देख लो कैसा रहा उनको डराने वालों का अंजाम। मगर अल्लाह के चुने हुए बंदे बचाए गए। और बेशक नूह ने हमें पुकारा, तो देखो हम कैसे अच्छे जवाब देने वाले हैं। और हमने उसको और उसके घर वालों को बड़ी मुसीबत से बचा लिया और उसकी औलाद को बाकी रहने वाले बना दिया और उसके लिए बाद वालों में भलाई का जिक्र छोड़ दिया। सलाम है नूह पर दुनिया वालों में। बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। बेशक वो हमारे ईमानदार बंदों में से था। फिर हमने औरों को डुबा दिया। और बेशक इब्राहिम भी उन्हीं के गिरोह में से था जब वो अपने रब के पास पाक दिल लेकर आया। जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, तुम क्या पूछते हो? क्या तुम झूठे देवताओं को चाहते हो अल्लाह को छोड़कर? तो तुम अल्लाह के बारे में क्या गुमान रखते हो सारे जहान के रब के? फिर उसने सितारों की तरफ नजर डाली और कहा, बेशक मैं बीमार हूं। तो वो उससे पीठ फेर कर चले गए। फिर वो उनके देवताओं की तरफ गया और कहा, क्या तुम खाते नहीं? तुम्हें क्या हुआ है कि बोलते नहीं? फिर उसने उन पर दाएं हाथ से वार किया तो लोग दौड़ते हुए उसकी तरफ आए। उसने कहा, क्या तुम तराशे हुए को पूजते हो? हालांकि अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारे बनाए हुए को पैदा किया है। उन्होंने कहा, इसके लिए एक इमारत बनाओ, फिर उसे जलती आग में डाल दो। तो उन्होंने उसके लिए चाल चली तो हमने उनको नीचा कर दिया। और इब्राहिम ने कहा, मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूं, वो मेरी राह दिखाएगा। ऐ मेरे रब, मुझे नेकों में से औलाद अता फरमा। तो हमने उसको एक हलीम सब्र वाले बेटे की खुशखबरी दी। फिर जब वो उसके साथ दौड़ने की उम्र को पहुंचा तो उसने कहा, ऐ मेरे बेटे, बेशक मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे जबह कर रहा हूं, तो सोच तेरा क्या ख्याल है? उसने कहा, ऐ मेरे बाप, जो हुक्म आपको दिया गया है वही कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। फिर जब दोनों ने बात मानी और उसने उसको माथे के बल लिटा दिया और हमने उसको पुकारा, ऐ इब्राहिम, बेशक तूने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। बेशक हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला देते हैं। बेशक ये तो साफ साफ आजमाइश थी और हमने उसके बदले में एक बड़ा कुर्बान कर दिया और उसके लिए बाद वालों में भलाई का जिक्र छोड़ दिया। सलाम है इब्राहिम पर। हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। बेशक वो हमारे ईमानदार बंदों में से था और हमने उसको इसहाक की खुशखबरी दी जो नबी और नेक लोगों में से था। और हमने उसको और इसहाक को बरकत दी और उनकी औलाद में नेकी करने वाले भी हैं और जालिम भी हैं जो अपने आप पर खुला जुल्म करते हैं। और बेशक हमने मूसा और हारून पर इनायत की और उनको और उनकी कौम को बड़ी मुसीबत से बचा लिया और उनकी मदद की, तो वही गालिब हुए। और हमने उनको साफ साफ किताब दी और उनको सीधे रास्ते की राह दिखाई और उनके लिए बाद वालों में भलाई का जिक्र छोड़ दिया। सलाम है मूसा और हारून पर। बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। बेशक वो हमारे ईमानदार बंदों में से थे और बेशक इलियास भी रसूलों में से था। जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम डरते नहीं? क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे अच्छे पैदा करने वाले को छोड़ देते हो, अल्लाह को, तुम्हारे रब और तुम्हारे बाप दादा के रब को? तो उन्होंने उसको झुठलाया, तो वो जरूर हाजिर किए जाने वालों में होंगे। मगर अल्लाह के चुने हुए बंदे बचाए गए और उसके लिए बाद वालों में भलाई का जिक्र छोड़ दिया। सलाम है इलियास पर। बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। बेशक वो हमारे ईमानदार बंदों में से था और बेशक लूत भी रसूलों में से था। जब हमने उसको और उसके सब घर वालों को बचा लिया मगर एक बूढ़ी बीवी को पीछे रहने वालों में से, फिर हमने औरों को हलाक कर दिया। और बेशक तुम सुबह शाम उनके पास से गुजरते हो, तो क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? और बेशक यूनुस भी रसूलों में से था। जब वो भागकर भरी हुई कश्ती में पहुंचा, फिर उसने कहुर्रा डाला तो हारने वालों में से हो गया। फिर उसको मछली ने निगल लिया और वो मलामत वाला था। अगर वो तस्बीह करने वालों में से न होता तो कयामत तक उसके पेट में रहता। फिर हमने उसको नंगी जमीन पर डाल दिया और वो बीमार था।
और हमने उस पर एक बेल कदद्दू उगाई और उसको 1 लाख या ज्यादा लोगों की तरफ भेजा, तो वो ईमान लाए तो हमने उनको एक वक्त तक के लिए फायदा दिया। तो ऐ नबी, उनसे पूछो, क्या तुम्हारे रब के लिए बेटियां हैं और उनके लिए बेटे? क्या हमने फरिश्तों को औरतें बनाया जबकि वो देख रहे थे? देखो, ये लोग अपनी झूठी बात कहते हैं, अल्लाह ने बेटा पैदा किया और बेशक वो झूठे हैं। क्या उसने बेटियां चुनी बेटों पर? तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसे फैसला करते हो? तो क्या तुम याद नहीं करते? या तुम्हारे पास कोई साफ साफ सबूत है? तो अपनी किताब लाओ अगर सच्चे हो। और उन्होंने अल्लाह और जिन्हों के दरमियान निस्बत बना डाली, हालांकि जिन्न जानते हैं कि वो अल्लाह के पास पेश किए जाने वाले हैं। पाक है अल्लाह उस चीज से जो वो बयान करते हैं, मगर अल्लाह के चुने हुए बंदे ऐसा नहीं कहते। तो बेशक तुम और जो कुछ तुम पूछते हो, तुम उस पर, अल्लाह पर, किसी को बहका नहीं सकते मगर उसी को जो दोजख में जाने वाला है। और फरिश्ते कहते हैं, हमारे में कोई ऐसा नहीं जिसके लिए एक ठहराव की जगह न हो, और बेशक हम ही सब बांधने वाले हैं, और बेशक हम ही तस्बीह करने वाले हैं। और बेशक ये लोग कहते थे, अगर हमारे पास पहले वालों की कोई किताब होती तो हम अल्लाह के चुने हुए बंदे होते, मगर उन्होंने इस कुरान को झुठला दिया तो जल्द ही जान लेंगे। और बेशक हमारा पहले ही से हमारे बंदों रसूलों के हक में कौल हो चुका है कि बेशक वही जरूर मदद पाने वाले हैं, और बेशक हमारा लश्कर ही गालिब होने वाला है। तो एक वक्त तक उनसे मुंह फेर लो और उनको देखो तो वो भी जल्द ही देखेंगे। तो क्या वो हमारे अजाब को जल्दी चाहते हैं? तो जब वो उनके आंगन में उतर जाएगा तो बुरा होगा वो सवेरा जिनका डराया जाता था, और एक वक्त तक उनसे मुंह फेर लो और देखो तो वो भी जल्द ही देखेंगे। पाक है तेरा रब इज्जत वाला उस चीज से जो वो बयान करते हैं, और रसूलों पर सलाम हो और तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो सारे जहान का रब है।